Hello friends, how the days are going on? I have been sending and posting all the videos, uploading all the videos constantly. Today we are going to deal with the topic capacitance. Capacitance is an electric device which basically collects the charges. Now why capacitance has come into the requirement? See, एक सिंगल कंडक्टर रहेगा, एक कंडक्टर अपने अंदर चार्जेस को कैरी कर सकता है, बट इट हैज गॉट अ लिमिट. अ सिंगल कंडक्टर कैन कलेक्ट द चार्जेस, बट इट हैज गॉट अ लिमिट. और हम लिमिट को बढ़ा कैसे सकते हैं? तो देयर द रोल ऑफ कैपेसिटेंस कम्स. यहां कैपेसिटेंस का रोल प्ले होता है. दैट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड नाउ. व्हाट इज द कैपेसिटेंस एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस. नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस. Principle of capacitance. So let us see. Suppose a plate is given, plate A is given completely positive charge. Complete positive charge we have given to a plate. Complete positive charge we have given. Because of this complete positive charge, the end of the B which faces A gets negatively induced. Here negative charges have generated, and this side all positive charges are generated. Positive charges are generated. When it is brought nearer to this, further this negative charges increase. So its capacity has got increased. We can further give more charges when we bring it nearer to each other. Another case when we see, what is the another case is, suppose this side of B is earthed. When we ground it, all the positive charges of this side go into the ground. Why do they go to the ground? Because electrons from the ground reach here and neutralize these positive charges. So what happens in this case? In this case, because of this negative charges, the potential of A gets decreased a bit. And we are in a position to give it more charges. Hence, capacity of this system has increased more. So, more is the capacity, more is the collection of the charges. So, what we have seen here, as we increase the potential difference, we are able to give more and more charges. So, we are seeing here, Q is proportional to V. On removing this proportionality constant, we get Q is equal to CV. And remember this formula, Q is equal to CV. Q is equal to CV. मैं इसको याद रखने का एक दूसरा ट्रिक अपनाता हूं कि साहब मैंने लिख दिया C और उसके बाजू में मैंने लिख दिया V. ये बन गया ना Q जैसा. तो Q is equal to C और ये V. ये है CV. Q is equal to CV. Remember Q is equal to CV. ये फॉर्मूला हमको बाई हार्ट वैसे भी होना चाहिए है. अब हम जब अपन ने प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस को समझ लिया कि इसमें सिंपल है, सब आपको शुरुआत यहां से करना है कि सिंगल कंडक्टर हैज गॉट इट्स लिमिट टू कलेक्ट द चार्जेस. सो वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटेंस टू कैपेसिटी टू कलेक्ट द चार्जेस बाय ब्रिंगिंग अनदर कंडक्टर नियरर टू इट. फर्दर वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटेंस व्हेन वी ग्राउंड द अनदर साइड ऑफ द second plate. So capacitance has got increased. Here Q is proportional to V. जितना हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे उतना ज्यादा हम चार्ज दे सकते हैं. जितना ज्यादा हम चार्ज दे सकते हैं उतनी ज्यादा इसकी कैपेसिटेंस बढ़ेगी. तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहां से हटा तो C इज द कांस्टेंट. दिस C ओनली इज द कैपेसिटेंस. और यहां से मैं लिख सकता हूं C इज इक्वल टू Q अपॉन V. Q अपॉन V. और इसका ऐसा यूनिट है फैराड. Farad is the SI unit of capacitance. Coulomb per volt. Coulomb per volt. Coulomb per volt. Now we will understand the capacity due to parallel plate capacitor and then spherical capacitor. So let us see. Parallel plate capacitor. Here this plate is given positive charge and this plate is given negative charge.
हमको ये देखने का है कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो देयर आर सम सर्टेन स्टेप्स विच यू मस्ट फॉलो फॉर डिराइविंग द कैपेसिटेंस ऑफ एनी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. क्या क्या स्टेप ले सकते हैं? हमको सी पता करना है. सी इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई वी. तो 2-3 स्टेप हम समझ लें. पहला है, ये आप उसमें मेमोरी टिप्स में लिख सकते हैं आपने. फर्स्ट है, ई पता होना चाहिए आपको. यू मस्ट नो ई. सेकेंड इज V इज इक्वल टू E इंटू डी. E इंटू डी. एंड द थर्ड इज C इज इक्वल टू Q बाय V. यहां पे Q को आपको जरूरत पड़ सकती है लैम्डा एल के रूप में लिखने के लिए, या आपको जरूरत पड़ सकती है सिग्मा ए के रूप में लिखने के लिए, यदि शीट का है तो मामला, ये वायर का है तो मामला, और यदि आपका स्फीयर वगैरह है तो रो वी. ये वॉल्यूम है यहां पे, रो इंटू वॉल्यूम अपॉन वी वोल्टेज. तो दिस वे यू कैन फाइंड आउट द सी. पहला ई पता होना चाहिए. गॉस थ्योरम से हमने पता कर लिया ई कैसे निकालना. फिर वी पता होना चाहिए. फिर सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी पे अप्लाई कर दो. तो 3 इसके फंडे हैं, है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ ई यू शुड नो, देन वी एंड देन सी. डियर स्टूडेंट्स, हियर वी नो दैट, व्हाट डू वी नो दैट? E is equal to sigma by epsilon 0. Now V is equal to sigma by epsilon 0 into D. And C is equal to, apply the formula now, C is equal to Q by V. तो C is equal to Q upon V. Q is equal to, मैंने लिखा sigma A, because it is the case of a sheet. Plain sheets are there. We are keeping Q is equal to sigma A upon V is equal to, हमने रख दिया E into D. तो ये V का वैल्यू है, ये इक्वेशन नंबर 2 से मैंने V का वैल्यू रखा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू डी. यहां सिग्मा सिग्मा कैंसल, ये वाला और ये वाला. तो व्हाट डू वी गेट? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी. हमको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मिला एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी. 2 लाइन का डेरिवेशन है. एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी. एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री वैक्यूम. जैसा अपन ने पहले के लेक्चर्स में भी देखा है कि इट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री वैक्यूम. अच्छा, वैक्यूम की स्पेलिंग ध्यान देना, VACWM लिखना भैया. VACCUM नहीं लिख देना, ये लिखना VACWM, वैक्यूम. दिस इज द मिस्टेक कॉमनली कमिटेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. एंड देन द परमिटिविटी. नाउ तो परमिटिविटी ऑफ फ्री वैक्यूम हो गया. बट इफ एनी अनदर मीडियम इज देयर, यू विल कीप हियर एब्सोल्यूट परमिटिविटी. एप्सिलॉन ए अपॉन डी आप लिख सकते हैं. ठीक है, तो आगे अपन इसको सॉल्व करेंगे. लेट अस सी. पहले अपन ने इतना कर लिया. नाउ वी विल गो फॉर अनदर वन. वो भी एप्सिलॉन कब लिखने का है? जब ये फुल्ली ऑक्यूपाइड होगा. तो वो एक दूसरा डेरिवेशन है जिसमें कि कैपेसिटेंस इज फुल्ली ऑक्यूपाइड एंड फुल्ली फिल्ड बाय द डाइलेक्ट्रिक इन बिटवीन द प्लेट्स. पहला डेरिवेशन हमने कर लिया, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ई निकाल लिया, V इज इक्वल टू E इंटू डी रख लिया, C इज इक्वल टू Q बाई V कर दिया, वैल्यू रख दिया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी. अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आ गया है. रिमेंबर इट, बाय हार्ट इट. हम अब करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर. हियर वी आर सीइंग द कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर. यह कंडक्टर है, इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है. जिसका रेडियस है स्मॉल आर. स्मॉल आर इसका रेडियस है. मुझे निकालना है साहब कैपेसिटेंस. तो फंडा क्या था? आपको सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए? E मालूम होना चाहिए है. तो बिकॉज ऑफ द E, व्हाट विल द वैल्यू? E इज इक्वल टू क्या मिलेगा? KQ बाय R स्क्वायर. V इज इक्वल टू क्या मिलेगा? KQ बाय R. हमने लगाया फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q अपॉन V. Q अपॉन V. V का वैल्यू रख दो. V का वैल्यू क्या मिला? KQ बाय R. KQ
अपॉन आर था, ऊपर आ गया, क्यू क्यू कैंसल, आर अपॉन के। अच्छा, के इज इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0, तो 4πε0 आ गया ऊपर, 4πε0 आर। इस तरह से स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस मुझे मिला, C इज इक्वल टू 4πε0 आर। यदि हमको अर्थ का कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्वेश्चन आता है, इसमें हम आर का वैल्यू रखते हैं 6400 किलोमीटर, और इस तरह से सी का वैल्यू निकल जाता है, अर्थ का कैपेसिटेंस का भी वैल्यू निकल जाता है। तो हमने अभी देखा कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, V निकाला, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी में वैल्यू को रख दिया, आई एम गेटिंग 4πε0 आर। नाउ we are seeing series combination. Suppose there are three capacitances. Connected in series. Voltage V is given to them. Dear students, एक बात हमेशा याद रखना, जब भी हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं कैपेसिटेंसेस को, व्हाट हैपेंस इज चार्ज एंटरिंग एट वन पॉइंट इज इक्वल टू चार्ज गोइंग आउट एट अनदर पॉइंट। मतलब चार्ज जितना यहां क्यू यहां से पॉजिटिव चार्ज एंटर कर रहा है, उधर से निगेटिव चार्ज पॉजिटिव उतना निकल रहा है, मतलब वहां पे निगेटिव चार्ज उतना रहेगा दूसरा एंड पे। तो ये हुआ हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में चार्ज कांस्टेंट लेना या करंट कांस्टेंट लेना, और पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट लेना। तो व्हाट इज द मेमोरी टिप हियर? मेमोरी टिप हियर इज इन सीरीज Q or I is same. In parallel V is same. V को सेम लेना है सब में। ये मेमोरी टिप है, इसको मेमोरी टिप को याद रखेंगे। Here capacitance is C1 C3। हमको फॉर्मूला मालूम है Q इज इक्वल टू CV। हमने यहां पे क्या किया हुआ है, Q को सेम लिया हुआ है, तो बटा क्या इसमें क्या चीज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, V डिस्ट्रीब्यूट हुआ। Voltage developed across C1 is V1, voltage developed across C2 is V2, voltage developed across C3 is V3. Total V is equal to V1 plus V2 plus V3. That is, अब फॉर्मूला लगाएंगे Q is equal to CV. Since Q is equal to CV, तो V is equal to क्या हो गया, Q by C। तो Q तो सेम है, मैंने बताया सभी में, तो Q by C1 plus Q by C2 plus Q by C3. Here Q by resultant C. नेक्स्ट स्टेप में Q इज कॉमन, पूरा Q निकाल लेंगे, इधर से Q निकल गया बाहर और इससे Q निकल गया बाहर, तो ये क्या मिलेगा मुझे, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये जो Q था एक्चुअली, इस Q का क्या हुआ, ये Q निकल गया कॉमन और ये Q यहां था, तो ये वाला Q और ये वाला Q क्या हो गया, कैंसल। तो हमको क्या मिल रहा है यहां पे, हमको मिल रहा है 1/C इज इक्वल टू Q कैंसल, मुझे मिल रहा है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। दिस इज द कैपेसिटेंस, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, व्हाट हैपेंस इफ एन आइडेंटिकल कैपेसिटेंसेस ईच ऑफ कैपेसिटेंस C आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। तो हमने क्या लिखा इसमें, क्वेश्चन क्या मिला हमको, एन आइडेंटिकल कैपेसिटेंस ईच ऑफ वैल्यू C कनेक्टेड इन सीरीज। क्या करना पड़ेगा, 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C
it goes n times. You get n upon c. 1 by c dash is equal to. तो c dash is equal to क्या मिला? c upon n. ये रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकलता है यदि n आइडेंटिकल कैपेसिटेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज का क्वेश्चन आपको आता है तो ये हमने अभी किया सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंसेस. नाउ वी विल डील विथ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस. वी हैव हियर 3 capacitances connected in parallel with a battery. This is C1, C2, C3. Voltage is applied here V. अच्छा एक बार ध्यान देना, मैंने बताया था पैरेलल में V सेम रहेगा, तो यहाँ पे V सेम रहेगा पूरी प्लेट्स के अक्रॉस. कितने भी इसमें कैपेसिटेंसेस, irrespective of how many number of capacitances you connect here, V will remain same. तो डिस्ट्रीब्यूट क्या हुआ इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ चार्ज. या यूं कह लें कि जब ऐसा पाइप से पानी जा रहा है तो पहले पाइप में कुछ करंट पानी निकलेगा, करंट निकलेगा, यहां से कुछ करंट निकलेगा, यहां से कुछ करंट निकलेगा, यदि द वाटर करंट इज देयर. तो सिमिलरली यहां चार्ज है तो यहां से चार्ज Q1 आया, यहां चार्ज Q2 आया, यहां चार्ज Q3 आया. टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. Q1 इक्वल टू C1 और सेम क्या चीज है V, C2 V प्लस C3 V और यहां भी लग दिया CV. Q इज इक्वल टू CV. नाउ V इज कॉमन तो हमको क्या मिला, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3. ये आपका है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस में मिल गया C1 प्लस C2 प्लस C3 और सीरीज में मिला था 1/C प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. ऐसा अपने को सीरीज कॉम्बिनेशन में मिला था. क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है, इसमें क्वेश्चन बनता है n आइडेंटिकल कैपेसिटेंसेस ईच ऑफ वैल्यू C are connected in parallel. What will be the resultant capacitance of parallel combination? तो C प्लस C रखते जाइए. कितने बार सर? n टाइम्स है क्योंकि n कैपेसिटेंस है तो n इंटू C. यह आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन दी n कैपेसिटेंस ईच ऑफ वैल्यू C हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का वैल्यू आ गया n इंटू C. नाउ वी विल डील विथ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर. हम लोग पढ़ रहे हैं एनर्जी ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर. व्हाट इज दैट? इज कंसिडर अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C चार्ज विथ चार्ज Q चार्ज से उसको चार्ज किया है. Q चार्ज से चार्ज करने पे उसका पोटेंशियल कितना पहुंच गया? V डैश पहुंच गया. कितना पहुंच गया? V डैश पहुंच गया. तो V डैश इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया? V डैश इज इक्वल टू मैंने लिख दिया Q बाय C. सपोज मुझे इसमें स्मॉल इंक्रीमेंट करना है चार्ज में dQ का. सो द वर्क डन टू इंक्रीज द चार्ज, थोड़ा सा बढ़ाना है मुझे, सपोज dQ बढ़ाना है, dQ रेस करना है. तो व्हाट विल बी दैट? dW इज इक्वल टू V डैश dQ. तो फुल वर्क क्या हो गया? W इज इक्वल टू 0 टू W इंटीग्रेशन dW, इंटीग्रेट कर देंगे वहां पे, इंटीग्रेशन V डैश. तो V डैश क्या है? Q बाय C dQ. और dQ यानी कितना बढ़ाना पड़ा? 0 टू Q लेंगे उसको पूरा. पहले शुरू में 0 चार्ज रहा, बाद में सपोज Q चार्ज हो गया. तो व्हाट एम आई गेटिंग हियर इज, ये C तो आ गया बाहर और इंटीग्रेशन मिल रहा है 0 टू Q कैपिटल Q dQ. यहां पे आपको मालूम है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? x dx इज इक्वल टू x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, मतलब x स्क्वायर अपॉन 2. सिंस तो यहां हमको ये क्या देगा? ये हमको देगा 1 अपॉन C, Q का हो गया Q स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट कहां से कहां तक आएगा? 0 टू कैपिटल Q. यहां से मुझे क्या मिलेगा?
अपर लिमिट रखूंगा माइनस लोअर लिमिट रखूंगा। यहां आते हैं अपन, यही चलने देते हैं बाजू में। नाउ 1/c, दिस गिव्स मी q स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0, दैट इज q स्क्वायर अपॉन 2c, q स्क्वायर अपॉन 2c। फिर से ध्यान से समझे, आपको एक कैपेसिटर को आपने dq चार्ज इंक्रीज करने हैं, उसके लिए पहले अपन ने q से देखा कि q चार्ज हमने दिया तो कितना पोटेंशियल हो गया v डैश इज इक्वल टू q बाई सी। फिर dq चार्ज इंक्रीज करना था तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, w इज इक्वल टू qv, वर्क इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल। यहां सीन्स में लिख लो, वर्क इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल, या w इज इक्वल टू qv, दैट इज w। वैसे इसका मेमोरी टिप क्या है, क्या टिप है, देखो q लिखो, उसके बाजू में v लिखो, तो ये w जैसा बना कि नहीं बना, ये w बन गया ना, इसलिए w इज इक्वल टू qv, ये बन गया w, देखो इसलिए w इज इक्वल टू qv, ऐसा याद रखते हैं। तो ये खैर अभी हमने एनर्जी निकाल ली q स्क्वायर अपॉन, तो q का इंटीग्रेशन हो गया q स्क्वायर अपॉन 2 और ये q स्क्वायर अपॉन 2 से हमारा आंसर आ गया। यहां पे अलग अलग हम एक्सप्रेशन निकालेंगे q की वैल्यूज को रख रख के। मैं बोर्ड के इस तरफ आता हूं, W इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, यहां Q की जगह पे मैं लिखूंगा CV, तो C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2c, ये C और ये पावर कैंसल, हमको क्या मिला, हाफ CV स्क्वायर। एक वैल्यू यह है, दूसरी वैल्यू यह है, तीसरी वैल्यू क्या करूंगा मैं, V इज इक्वल टू मैं लिख देता हूं Q बाय सी, Q बाय सी, तो क्या मिलेगा देखें जरा, Q स्क्वायर अपॉन 2c, यहां से वो वापस आ जाएगा, Q इज इक्वल टू CV, C हाफ CV स्क्वायर हाफ CV स्क्वायर। ये हो गया, V को मैंने यहां पे दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, देखिए V इंटू V, तो CV क्या हो गया Q, अब मिल रहा है मुझे हाफ QV, ये मिल गई मुझे तीसरी वैल्यू। तो व्हाट एम आई गेटिंग, टोटल वैल्यू ऑफ वर्क इज हाफ QV पहला, दूसरा मिला Q स्क्वायर अपॉन 2c, तीसरा मिला हाफ CV स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटेंस, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटेंस। तो यहां तक का डेरिवेशन हमको करना पड़ता है और अलग अलग एज पर द नीड ये फॉर्मूले अप्लाई होते हैं न्यूमेरिकल्स में, जैसा वेरिएबल दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंगली आप फॉर्मूले को रखेंगे। अब हम ये पूरा एनर्जी निकालने के बाद फाइंड आउट करेंगे एनर्जी डेंसिटी। Consider a parallel plate capacitor in which you know that C is equal to epsilon 0 A upon D, and energy just now we have seen energy is equal to, what we have seen is half CV square. Here energy density is equal to energy per unit volume। मैं वॉल्यूम को पूरा पूरा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि V लिखूंगा तो V यहां वोल्टेज भी है और V वॉल्यूम भी हो जाएगा, इसलिए वॉल्यूम को पूरा पूरा वॉल्यूम ही लिखूंगा। नाउ U अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू U अपॉन एरिया इनटू डिस्टेंस, सेपरेशन बिटवीन देम। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स वेयर एनर्जी इज स्टोर्ड इन द मीडियम। तो U अपॉन एडी, अब U का वैल्यू रख दो, हाफ CV स्क्वायर, CV स्क्वायर अपॉन AD, यहां वैल्यू रखूंगा हाफ, C का वैल्यू है
एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, सी का वैल्यू वी ई इंटू डी, तो ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, ई डी अपॉन ये ए डी लिखा ही है। यहां से ये ए और ये ए कैंसल, ये डी और ये डी और ये डी स्क्वायर कैंसल। व्हाट डू वी गेट हियर? हाफ एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर। ये एनर्जी डेंसिटी है व्हेन द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इज वैक्यूम और एयर, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटेंस। एनर्जी डेंसिटी के लिए क्या फॉर्मूला लगा मैंने? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। इसका जो मेमोरी ट्रिक है वो ये है कि एनर्जी अपॉन वॉल्यूम मैंने लगा दिया, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम को ए इंटू डी ले लिया, वी को ई डी लिख दिया, सी का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी रख दिया, यहां पे ये आ गया। बट इफ द डाइलेक्ट्रिक इज देयर, एनी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इज केप्ट बिटवीन द प्लेट्स, दो प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है, यहां पे पूरा भरा हुआ है इस बीच में, जिसका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है, तो ये क्या हो जाएगा? ये in that case energy density will be with dielectric is equal to हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी डेंसिटी। तो हमने पढ़ा एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहां क्या एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम का ए इंटू डी, ए इंटू डी ये लिखा हुआ है, और ये एनर्जी कितनी थी? हाफ CV स्क्वायर, सिंस W इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर या हाफ QV या हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। तो इस तरह से यहां पे वैल्यू को रख के हमको ये आंसर लास्ट में मिल जाता है। अब हम करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन द डाइलेक्ट्रिक इज फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। डेरिवेशंस एक्चुअली बच्चों बहुत छोटे छोटे हैं, बट थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ा सा ट्रिक पे ध्यान देना पड़ेगा। ट्रिक क्या है? जैसे कैपेसिटेंस का ट्रिक है, यू मस्ट नो ई। यहां पे कैपेसिटेंस निकालना है फिर से काय का? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जबकि उसमें क्या भरा हुआ है? बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर filled with डाइलेक्ट्रिक। अभी तक अपन ने इतना टॉपिक पढ़ा। आप लोगों को कोई टॉपिक समझ नहीं आता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन आस्क मी, यू कैन मेंशन द कमेंट बिलो ऑल्सो। इफ एनी स्पेसिफिक टॉपिक यू वांट टू बी टॉट बाय मी, प्लीज मेंशन इट। कीप लाइवली कनेक्टेड विथ मी। आई एम रेगुलरली अपलोडिंग नंबर ऑफ वीडियोज। प्लीज सब्सक्राइब इट, शेयर करें अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से। जितना ज्यादा आप उत्साह के साथ अपने दोस्तों से शेयर करेंगे, मुझे भी उतनी एनर्जी मिलेगी आप सभी लोगों को पढ़ाने के लिए। और लाइक करें, लाइक जरूर करें। जो भी आप लोगों को कोई डाउट है आप पूछें। अपन वी आर एक्सपेक्टिंग टू कंप्लीट द कोर्स बाय दिस समर एंड इटसेल्फ। तो आप लोग इन वीडियोस को रेगुलरली वॉच करते रहें और नेसेसरी नोट्स आप लोग बनाते रहें। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन पॉज इट, यू कैन नोट इट डाउन एंड यू कैन गो अहेड। पूरी कंसेप्ट को अच्छे से दिमाग में बैठाते चले। कुछ फॉर्मूले जो मैंने अभी बताया है, जैसे Q इज इक्वल टू CV, W इज इक्वल टू QV, Q इज इक्वल टू CV एंड W इज इक्वल टू QV, ऐसे फॉर्मूले याद रखते चले, आगे ये बहुत काम आने वाले हैं। अभी कर रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फील्ड विथ डाइलेक्ट्रिक। ये मैंने एक कैपेसिटर ले लिया, बड़े ध्यान से समझेंगे। एक तरफ की प्लेट स्वाभाविक है पॉजिटिव चार्ज रहेगी, दूसरी तरफ की प्लेट क्या रहेगी? निगेटिव चार्ज रहेगी। तो आपको क्या करने का? डायग्राम बनाने का, उसके बाद लिखने का शोन इन द डायग्राम इज अ कैपेसिटेंस फील्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक आपको भरना पड़ेगा दोनों प्लेट्स के बीच में। जब हमने डाइलेक्ट्रिक को भरा यहाँ पे, तो डाइलेक्ट्रिक को बढ़िया पॉलिश करना पड़ेगा। यू हैव टू पॉलिश इट ऑल्सो लाइक दिस। इफ द डेरिवेशन इज आस्क्ड in the board exam, otherwise
समझने के लिए तो कंसेप्ट काफी है। यहां पे डाइलेक्ट्रिक इज ऑफ थिकनेस T, कैपेसिटेंस की दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस था D। बहुत मजेदार चीज है यहां पे। एयर में इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी E0। इसके डाइलेक्ट्रिक के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड है E। सो द फील्ड डेवलप्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज E। The active electric field in the air between the plates is E0. So V is equal to, आपको स्टेप से याद रखना है, V पता होना चाहिए। सेकंड यू विल पुट द फॉर्मूला C is equal to Q upon V, वही कर रहे हैं यहाँ पे। V is equal to, तो V is equal to E0 into D minus T। देखिए एयर कहां से कहां तक है, D में हमने T का तो ऑक्यूपाई पहले कर लिया, तो बचा कितना, D minus T। तो D माइनस T में कौन एक्टिव है, एयर वाले पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज E0। E0 D माइनस T प्लस यहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है T थिकनेस में, वो है E इंटू T। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, E0 D माइनस T प्लस E इक्वल टू, एक्चुअली क्या होता है, E इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू E0 अपॉन K, जहां K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वैक्यूम अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम। K इज इक्वल टू क्या होता है, E0 अपॉन E, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू है उस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। तो E को मैं यहां पे अभी अपने पास में E का वैल्यू क्या लिख सकता हूं, E0 अपॉन K इंटू T। टेक E0 कॉमन, what do you get, D minus T plus T upon K, that's all। आपको V मिल गया। apply the formula, what formula you will apply, C is equal to Q upon V, applying C is equal to Q upon V, Q is equal to सिग्मा A, V का वैल्यू ये E0 D माइनस T, T बाई K, E0 D माइनस T प्लस T अपॉन K। E0 का वैल्यू, E0 मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, उसका वैल्यू आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या मिल रहा है, सिग्मा A अपॉन सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 D माइनस T प्लस T अपॉन K। यहां से सिग्मा सिग्मा कैंसल, एप्सिलॉन नॉट आगे ऊपर, क्या मिल रहा है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस T। डाइलेक्ट्रिक यहां लिख सकते हो, ठीक है, आगे ऑफ थिकनेस T, ऑफ थिकनेस T, डाइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस T। इसके दो स्पेशल केसेस हैं। क्या दो स्पेशल केसेस हैं, केस वन व्हेन द डाइलेक्ट्रिक इज पार्शियली फिल्ड, या फुली फिल्ड ले लेते हैं पहले, चलो, व्हेन द डाइलेक्ट्रिक इज फुली फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो मतलब क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक पूरा प्लेट्स के बीच में भर गया, यानी ये जो T था ये पूरा ऑक्यूपाई कर लिया D वाली जगह को। तो T इज इक्वल टू क्या हो गया, D, T is equal to D. Keeping this value in this formula, C is equal to, we get C is equal to epsilon naught A upon D minus D प्लस D अपॉन K, क्योंकि T की सब जगह पे D लिख दिया मैंने। तो ये D और ये D कैंसल, भाई डाइलेक्ट्रिक पूरा भर गया है, तो जो थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक थी वो पूरी D को ऑक्यूपाई कर ली। तो T की जगह पे मैंने सब जगह क्या, T इक्वल टू D हो गया, तो T की जगह पे मैंने D रख दिया है, T की जगह पे D रख दिया, D कैंसल, ये वाला माइनस प्लस, ये D रह गया,
के आ गया ऊपर, क्या मिल रहा है, C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। आपको याद होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब प्योर वैक्यूम बस रहता था तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता था। तो यहाँ पे फॉर्मूला मेरा क्या हो गया, के इंटू C0, मतलब कैपेसिटेंस मेरा के टाइम्स बढ़ गया है। कैपेसिटेंस कितने टाइम्स बढ़ गया है, के टाइम्स बढ़ गया है जब डाइलेक्ट्रिक पूरा इसमें ऑक्यूपाई किया हुआ है। सेकंड केस है जब डाइलेक्ट्रिक है ही नहीं, तो जब डाइलेक्ट्रिक है ही नहीं तो टी को मैं क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा। केस 2 व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज नॉट फिल्ड, तो टी इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। नो डाइलेक्ट्रिक के केस में डाइलेक्ट्रिक इज नॉट फिल्ड, हमने डाइलेक्ट्रिक भरा ही नहीं साहब बीच में, तो क्या मिल रहा है हमको, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी 0 प्लस टी 0 अपॉन के, ये 0 है पूरा, तो अपना क्या मिला आंसर यहां से, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, मतलब कि C0, तो जब डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो C0 वही की वही वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो ये दो केसेस इसकी स्पेशल इंपॉर्टेंस रखते हैं, एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है जरूर आता है। यहां हम एक बात देखें, कैपेसिटर लिया, डाइलेक्ट्रिक टी थिकनेस का लिया, दोनों प्लेट के बीच का गैप डी लिया, V की वैल्यू रखा, तो V E0 को कंसीडर करते हुए किया गया। E0 कितने में एक्टिव है, D माइनस टी पोर्शन में, यहां कितना एक्टिव है, E कितने लेंथ में, T डिस्टेंस में, E इंटू टी, E का E0 बाई के, E0 टेकन कॉमन, केप द वैल्यू इन द C इक्वल टू Q बाई V, Q इक्वल टू CV, तो C इक्वल टू Q बाई V, ये वैल्यू रख दिया, E0 का ही वैल्यू रख दिया, सिग्मा सिग्मा कैंसल, यहां पे दोनों केसेस को रख दिया मैंने कि पार्शियली फिल्ड और फुली फिल्ड। तो रिमेंबर दिस and I expect my dear students that you would be subscribing this, you would be liking this, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, और जो शिक्षकगण और जो पालकगण मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, पेरेंट्स जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज गिव इट टू योर वार्ड्स एंड 12th जो बच्चे आपके पढ़ रहे हैं, आप लोग इसको सब्सक्राइब करते रहें। मैं चाहूंगा कि आपकी एनर्जी मुझे मिलती रहे और उस पॉजिटिव एनर्जी से हम कोर्स को समर के पहले कंप्लीट कर लें। ऑल द बेस्ट।